Have you tried Chat GPT by any chance? अभी Yes, sir. तक? Yes, sir. So Chat GPT can concisely put the arguments of both the side in front of you, right? So at least GS पेपर जो तुम मुझे बता रहे हो, वो तो वैसे ही लग रहा है कि यार if you could have a prompt there, या अगर तुम खुद को वैसे ट्रेन कर लो कि oh there is a question and now let me decode in frameworks. That's the best approach to mains, right? Definitely, Putting it sir. into very easily digestible point. Hi guys, Rohit here. We are at the episode 4 of Civils Daily Raw and Real, and today we have Swapan. He's an interview candidate for this year. I think you have the third phase ka invitation to appear for the interview, Swapan. Am I Yes, sir. right? And my conversation with him on phone was for only one target thing. How did you improve upon your mains marks over every successive attempt? What were the new tricks which you figured out in every attempt, and when you look back at your preparation, कैसे employ किया? And it will be a long discussion, but इसका एक बहुत important highlight जो मुझे पता लगा सबसे बात करके वो ये था कि everyone keeps saying कि toppers copy से वापस check करके answers recursively better करते रहो, but Swapन said कि what would be more interesting is कि you look at toppers जिनका optional is different from the GS copy जिनकी देख रहे हो. तो अगर PubAd और Pol Science का कोई topper है, optional topper hai, he's likely to do good with the GS2 paper easily, right? But if someone has history or any other philosophy, let's say, and they are getting good marks in paper like GS2, then it makes sense for us to deep dive on their copies. Ki how did they, with limited knowledge and not much cross connections, figured how to back the best marks in GS. So ये एक premise है, and this should tell all of you that कितना scientifically approach किया गया इस paper को. And now we'll open the floor to Swapin, who will take us through the nitty-gritties of how he improved upon the marks. He's been a student at Civils Daily for a while now. He's been coached by the best that we have, Sajal sir, Zishan sir, Sukanya ma'am. And this time in Raw and Real, ये बिल्कुल he'll take us to the heart of his preparation. So Swapan, the floor is all yours. थोड़ा ना ऐसे objectively बनाएंगे कि you tell me what are the gaps of your mains answer writing when you came to us or when you started writing sincerely, and धीरे धीरे करते करते कैसे improve किया. And if there are some examples which you can share with us, we'll show it on the screen once the video is edited so that users or aspirants can actually take the best benefit out of this video. Perfect. Over to Yes, you. sir. So, sir, when we start our answer writing, generally we are not aware of the fact that we have to present our thinking in a diverse manner, for which point-wise writing is very important. Starting में what we do is like we will start writing long paragraphs, because we know that we have studied a lot and we know about a point in very much in detail. For example, in a dowry topic, if we know that what is the status of women in rural areas, we will start emphasizing upon a single point. But Hmm. in means to get more marks, we need to show the diversity in our points. Okay. उसके लिए हमें जैसे बताया जाता है कि पेस्टल अप्रोच यूज कीजिए, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल. सो बट जब हम आंसर राइटिंग लिखते हैं, हमें कभी कभी लगता है कि हम किसी चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं और हम एक ही Hmm. चीज को बार बार री करने की कोशिश करते हैं अपने आंसर में, बी इट 10 Hmm. मार्कर और 15 मार्कर. तो जब मैं सिविल्स डेली पे मेंटर से मिला, उनसे बात की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज मेरे को काफी एविडेंटली पता लग गई कि मेरे को अपने पॉइंट्स को कंसाइज रखना है और ज्यादा चीजों के बारे में लिखना है अपने आंसर में. तो ये चीज एक बहुत बड़ा टेक अवे था. स्टार्टिंग में मैं बहुत लॉन्ग पैराग्राफ्स लिख रहा था एक ही चीज को एम्फेसाइज करते हुए, बट उससे मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो चीज मैंने भी लेटर ऑन रियलाइज की कि मैं प्रेजेंट तो कर ही नहीं पा रहा अपने पॉइंट्स को, मैं सिर्फ एक ही चीज को घुमा फिरा के लिख रहा हूँ. ये जनरली जब भी Okay. हम आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हैं, ये चीज एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल रहता है जिसको हमें रियलाइज करने में जनरली टाइम लगता है. तो ये चीज Okay. जो एस्पिरेंट्स है वो अवॉइड कर सकते हैं इफ दे आर Okay. क्वाइट क्लियर. Okay. Example दो कि of a question, कैसे improve किया तुमने? Was it only about writing in points या फिर adding more elements to it? How did you improve? Any question which you remember that तुमने कल बहुत से attempt किया लेकिन फिर सुकन्या या सज्जो सर ने बोला कि नहीं नहीं you missed this completely. ये सर ज्यादातर सर हम जब वर्बोज हो जाते हैं, हम ग्रामर का यूज करते हैं अपने पॉइंट को रिप्रेजेंट करने में, इंस्टेड ऑफ कोई केस स्टडी. किसी एक विलेज का हमने एग्जांपल पढ़ा हो न्यूज़पेपर में, जो जो Hmm. जनरली हम ओवरलुक कर देते हैं. बट अगर हम कोई स्टार्ट प्रोवाइड कर दें किसी
विलेज का या किसी स्टेट का, जैसे हरियाणा में जो हमारा फीमेल एम्पावरमेंट लैक करती है, बट किसी विलेज ने वहां पे इम्प्रूव किया, उसकी केस स्टडी एक बॉक्स में बना के बता दी जाए, और यहाँ पिछले 5 ईयर या 10 ईयर का ट्रेंड एक ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट कर दिया जाए, जिसके लिए हमें कुछ Okay. बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, बट दीज एग्जांपल्स आर very often available in the newspaper itself or in the magazines also, which we refer to on a Okay. day-to-day basis. So, like in ethics, if we talk about, which Sukanya ma'am helped me, generally we don't write both of the sides of the question. Example, एक क्वेश्चन बहुत frequently आता है, what is more important, IQ और EQ? यहाँ पे हम क्या करते हैं, जनरली हम एक चीज को ही प्रेजेंट करते हैं कि IQ इज मोर इम्पोर्टेंट और EQ इज मोर इम्पोर्टेंट, बट जनरली क्या होता है, हमें यहाँ पे बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन बताने की जरूरत है। अगर IQ है बट EQ नहीं है, यहाँ पे ओसामा बिन लादेन का एग्जाम्पल आ जाता है, क्योंकि ही वॉज अ इंजीनियर, ही वॉज Correct. वेल रेड, बट ही यूज्ड his information in very disastrous way. सो उसको काउंटर, पहले हम 3-4 ऐसे एग्जांपल्स देंगे, हिटलर की, ओसामा की, और ऐसे जो पर्सनालिटीज रही हैं, बट फिर हम बताएंगे अगर EQ भी हम यूज कर पाए IQ के साथ, तो हमारे पास पर्सनालिटीज आती हैं विवेकानंद जैसी, महात्मा गांधी जैसी, जिन्होंने दोनों चीज का एक रैशनल कॉम्बिनेशन यूज किया है। तो जनरली क्या होता है कि जब हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं अपने GS के पेपर में, हम एक तरफ टिल्ट हो जाते हैं और हम अपने माइंड में आप ऐसा बना लेते हैं कि हमें उसी एक लाइन में सोचना है, बट GS में डाइवर्सिटी दिखाने के लिए हमें बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन की बात करनी होती है, जो जनरली हम कभी कभी मेंस के प्रेशर में ओवरलुक कर देते हैं। तो ये चीज मेंटरशिप में मेरे को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में रियलाइज हुई। ओके, तो मैं एक सिनेरियो देता हूँ, ठीक है। इमेजिन यू आर अ मेंटर, और कोई कोई लड़का या लड़की आती है पहली बार, हु इज स्टार्टिंग टू अटेम्प्ट दिस पेपर, and they understand what you're saying in theory, but they want to know more examples. So they want ki acha, so give me a question which a very newbie will attempt versus a more serious and experienced aspirant will attempt. कैसे कैसे फर्क होगा, क्या चीजें completely lapse हो जाएंगी एक न्यूबी में, who's reading a lot, knowledge बहुत है। कोई एक एग्जांपल लेके बताओ। एथिक्स का तो आई गॉट इट, बट मे बी गवर्नेंस या सोशल इश्यूज में से किसी एक चीज से देख के बताओ कि कैसे होता है। सर, अगर हम एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन है, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके, और कोई भी एक सीरियस एस्पिरेंट होगा या इवन एक न्यू एस्पिरेंट, उन्होंने इन एंड आउट उस पॉलिसी के बारे में पढ़ लिया होगा, बट given the space which we are having in GS paper, like 2 पेज और 3 पेज में पूरी पॉलिसी का क्रक्स बताना इज अ डिफिकल्ट टास्क। तो अगर किसी को बहुत ये चीज पता है निटी ग्रिटी के, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में रिसर्च की बात हो रही है, वोकेशनल एजुकेशन की बात हो रही है, तो वो जानते हुए बिना भी एक ही चीज के ऊपर एम्फसाइज करते रहेंगे कि हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर फोकस हो रहा है, रिसर्च के ऊपर फोकस हो रहा है, वो इसी चीज को 2-3 पॉइंट्स में बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिख देंगे। बट एक जो सीजन कैंडिडेट है, उसको पता रहेगा कि हमें प्री प्राइमरी एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन तक की एक वैल्यू चेन जो होती है, पूरी के बारे में बात करनी है। तो और वो इन पॉइंट्स को बताते हुए भी एक ऑर्डर फॉलो करेंगे, वो रैंडमली पॉइंट्स नहीं फेंकेंगे। वो पहले बताएंगे कि प्री प्राइमरी एजुकेशन किस एज से किस एज ग्रुप के लिए है। पुरानी पॉलिसी में वो फॉर्मलाइज नहीं था, जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे उनके लिए उस चीज को अडॉप्ट करना UKG LKG फॉर्मेट के लिए कंपलसरी नहीं था, बट अब वो कंपलसरी है। और ये चीज, ये स्ट्रक्चरल चेंज है, बट इससे फंक्शनल चेंज क्या आएगा इससे, वो इसके ऊपर भी एम्फसाइज करेंगे इन मिनिमल नंबर ऑफ वर्ड्स। जबकि एक नया कैंडिडेट उसको वर्बिटोज, ज्यादा से ज्यादा ग्रामर के थ्रू बताना शुरू करेगा। एक पुराना कैंडिडेट या सीजन कैंडिडेट उसको ग्राफ के फॉर्म में या एक फ्लो चार्ट से कम वर्ड्स में समझाने की कोशिश करेगा। वो प्री प्राइमरी से प्राइमरी पे आएगा, सेकेंडरी पे आएगा, फिर हायर पे आएगा, और उसके अंदर उस प्री प्राइमरी में प्राइमरी में क्या चेंजेस है, साथ साथ उसको भी टच अप ऑन करता जाएगा, ताकि कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट की जाए और बेसिकली हम अपना आंसर कन्वे कर पाए इन मिनिमल वर्ड्स में। तो ये एक फर्क होता है। Correct. And you mentioned that thing about toppers, right? कि तुमने alternate optional वाले toppers के GS attempts देखे, and then what did you find there? मतलब ऐसा क्या interesting तुमको लगा कि what were the key strengths that these guys were using जिनको optional related नहीं था?
सर जैसे मैं अपने फर्स्ट 2 मेंस में GS 1 में बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा था। मेरा ऑप्शनल PSIR था, तो GS 2 में मैं काफी कंफर्टेबल था। फिर हम्म जैसे मैंने एक दो टॉपर स्टॉक सुनी और मैंने देखा कि उनके ऑप्शनल काफी डिफरेंट है। जैसे किसी का एंथ्रोपोलॉजी था या किसी का हम्म हिस्ट्री था, अपना पबैड था, बट उन्होंने GS 1 में बहुत अच्छा किया हुआ था। तो मेरे को फिर उनकी जब मैं टॉपर कॉपीज मैंने गया और मैंने वो देखी, तो मेरे को लगा कि जो नॉलेज इनके पास है मेरे पास सेम नॉलेज है। एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो उनके पास एक्स्ट्रा होगी, बट हम्म द वे दे आर प्रेजेंटिंग देयर नॉलेज इज वेरी डिफरेंट द वे आई एम प्रेजेंटिंग। लाइक मैं बहुत ज्यादा लिखने की तरफ फोकस करता था एज कंपेयर टू ग्राफ्स या डायग्राम्स ड्रॉ करना एट रेलिवेंट पॉइंट्स। अगर मैं ड्रॉ भी कर रहा था वो इरेलीवेंट वे में ड्रॉ कर रहा था, जिसके कारण जो एग्जामिनर थे उनको लग रहा होगा कि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। बट ये टॉपर्स जो थे, जैसे अगर आर्ट एंड कल्चर में टेम्पल आर्किटेक्चर का क्वेश्चन आ रहा है, तो कभी कभी मैं सिर्फ द्राविडियन और नगारा को कंपेयर करके आगे बढ़ रहा था, बट वो नगारा और द्राविडियन का साथ ही साथ में एक एग्जाम्पल दे रहे थे। अगर द्राविडियन आर्किटेक्चर की बात हो रही है, स्कल्पचर्स की बात हो रही है, तो मैं नटराज तो लिख रहा था, बट ये टॉपर्स एक बहुत सिंपल सा नटराज भी ड्रॉ कर दे रहे थे, जिसके कारण इनको हाफ अ मार्क 1 मार्क एक्स्ट्रा मिल जा रहा था wherever they used to do such value additions. So that I realized that ओके if there are 20 questions, if we are able to do such value additions in even half of the questions and we are able to score half a mark, straight away we can score 5 to 10 marks extra. So though it is easier said than done, बट ये हम्म कॉन्शियसली अगर हम जब स्टडी करते हैं चीजों को और उनको साथ ही साथ कॉन्शियसली अडॉप्ट करते हैं अपने आंसर राइटिंग में, तो इसका रिजल्ट दिखना शुरू होता है और हम ज्यादा चीजों को स्ट्राइक कर पाते हैं अपने क्वेश्चन में। और हम सिर्फ 2-3 चीजों पे स्टक नहीं रह जाते और अपने नोट्स का भी बेटर यूज कर पाते हैं आफ्टर सीइंग सच प्रॉपर कॉपीज। So if I look at your mock attempts at CD, will I be seeing these things? Have you incorporated these things in your answer attempts? यस सर, इन सम ऑफ द You टेस्ट आई हैव डन दैट, यस सर। okay? Interesting. What else? What else are the common pitfalls या rabbit holes जिस जो interesting होते हैं और काफी glamorous लगते हैं when someone thinks of mains answer writing attempt which people fall into? सर जैसे हम कभी कभी टॉपर्स की बातों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं या उनकी बातों को डिकोड नहीं कर पाते। जैसे कभी कभी कोई बोलेगा कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता ही नहीं, और कभी हम्म कभी कोई बोलेगा कि मैं न्यूज़पेपर लास्ट डे तक पढ़ता हूँ। तो इस चीज हम्म को अगर हम एब्सोल्यूट वे में ले लें, हम खुद कभी कभी वो डायलेमा में आ जाते हैं कि क्या मैं जो कर रहा हूँ सही है। तो हाँ एक टाइम के बाद, स्टार्टिंग के 3-4 महीने ऑफ प्रिपरेशन के बाद, एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैं क्या चीजें सही कर रहा हूँ और मैं क्या चीजें गलत कर रहा हूँ। डेफिनेटली स्टार्टिंग के 3-4 मंथ्स एक न्यूज़पेपर रीड करना भी एक अपने में एक आर्ट होती है जो डेवलप होती है धीरे हम्म धीरे। स्टार्टिंग में हम्म हमें 2.5 घंटे 3 घंटे भी लगेंगे, और उस चीज से हमें डरना नहीं है कि मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा क्या चीज हम्म रेलिवेंट है और क्या चीज इरेलीवेंट है। बट धीरे 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 जब हम सिलेबस को समझना शुरू करते हैं, हम न्यूज़पेपर को लिंक कर पाते हैं कि ये इशू या इस पार्ट ऑफ सिलेबस के लिए रेलिवेंट है, तो डेफिनेटली इसकी मेरे पास कटिंग होनी चाहिए या शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। तो ये चीज हर किसी के लिए एक पर्सनल एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ एवोल्यूशन। डेफिनेटली कभी कभी जब हमारा मेंस आ रहा होता है, प्री आ रहा होता है, हमें न्यूज़पेपर्स को अवॉइड भी करना पड़ता है। तो इस चीज को हमें अपने दिमाग में एक डिलेमा सा ही बना के रखना चाहिए कि यार मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा। हमें कॉन्फिडेंट होना हम्म चाहिए कि यार ठीक है, जो इतना मैंने किया है वो सही है, और अभी अगर मैं जो जो डेली मैगजीन्स आ रही हैं, वीकली मैगजीन्स, मंथली मैगजीन्स, अगर उनसे कर लूंगा, तो मैं पिछले करंट अफेयर से इसको लिंक करके एक अंडरस्टैंडिंग बना लूंगा, जो मेरी मेंस के लिए भी सफाइस है और इवन प्रीलिम्स के लिए भी। तो got it got डेफिनेटली it अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास अवेलेबल हैं चीजें वेबसाइट्स पे, मार्केट में, कोचिंग से, हमें उन चीजों को अडॉप्ट करना चाहिए। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में सिर्फ 3 मंथ्स होता है। तो अगर हम किसी क्रैश कोर्स का यूज कर रहे हैं करंट अफेयर्स के लिए, तो हमें फिर उस पर कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि दे आर हेल्पिंग मी विद द बेसिक फॉर्डर विच विल आई बी रिक्वायरिंग वाइल आंसरिंग माई क्वेश्चंस। तो हमें न्यूज़पेपर भी करना है, क्रैश कोर्स भी करना है, और डेली मैगजीन भी करनी है, मंथली मैगजीन भी करनी है। अगर हम्म हम इतना कुछ करेंगे तो सब मैसअप हो जाएगा। जो got हमारे it पास है got it
उस हमें उन्हीं चीजों पे स्टिक रहना है। जैसे मैं 4 से 5 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मेरा बेसिक जो चीजें जो हैं जिनको मेरे को रेफर करना है, मेरे नोट्स वो सेम रहे हैं, वो चीजें चेंज नहीं होंगी। बस जो डेली नई नई स्कीम्स आ रही हैं उन चीज को वैल्यू ऐड करना है मेरे को अपने स्टैटिक नोट्स के साथ, वो चीज इवॉल्विंग होनी चाहिए। बट मैं ये हमेशा नया काफी हम्म अरीब, मेरी अभी बात हुई थी अरीबा से, हुज रैंक 109। उसने भी ये कहा था कि ये भी एक आर्ट ऑफ प्रिपरेशन है, बिकॉज when you keep doing this, people who are able to successfully do this stick with their basic notes, okay, and just keep incorporating what is needed. It's a temperamental thing which probably UPSC checks कि ऐसा तो नहीं है कि you just get bored, because bureaucracy is not a Bollywood movie in the making, right? You have to be sincere, keep up at it, keep doing the same thing again and again and very diligently, which is interesting. So अपन ये बताओ कि, so take examples of Sajal's guidance for you, right? What were the key things which he did to you, uh, which kind of shifted your preparation to a new journey? मतलब specifically जो तुम्हें याद हैं चीजें, वो बताना with examples. तो सर, जैसे जब भी हम आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हैं हमें बताया जाता है कि इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, ये 3 चीजें हैं जिन पे हमें फोकस करना है। बट उस चीज को भी थोड़ा और ब्रेक करना कि हम इंट्रो में क्या चीज यूज कर सकते हैं, बॉडी में क्या यूज कर सकते हैं, कंक्लूजन में क्या यूज कर सकते हैं। ये जब मैंने सजल सर के साथ, सुकन्या मैम के साथ, शुभम सर के साथ ज्यादा इंटरेक्ट किया तो पता लगा। जैसे कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम है, तो वो स्कीम को कंक्लूजन में कोट करना एक अच्छा लास्टिंग इम्पैक्ट शो करता है कि हम उस चीज के बारे में जानते हैं। अगर एजुकेशन के ऊपर क्वेश्चन है, ये जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन में ही मेंशन्ड होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करो या राइट टू एजुकेशन की बात करो। तो अगर हम इन एग्जांपल्स को इनकॉर्पोरेट करें, जैसे हम्म इंट्रोडक्शन में स्टैट्स डालना आसान है, फिगर हम्म डालना आसान है, तो इस चीज हम्म से एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है क्वेश्चन को। अगर हम प्रिजन स्टैट्स की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ अंडर ट्रायल्स की बात कर रहे हैं किसी क्वेश्चन में, तो वो अगर हम इंट्रोडक्शन में ही डाटा बता दें कि वी आर अवेयर ऑफ सच डाटा, तो एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है और हमें कुछ ज्यादा ग्रामर का यूज नहीं करना पड़ता अपने इंट्रोडक्शन में। उसके बाद जब बॉडी पे ये आते क्या हैं, फंडा है तो यार बॉडी कि में have, ये क्या फंडा है तुम्हारा कि पॉइंट वाइज लिखो? मतलब इज इट समथिंग तुमने एकदम अब you've shifted your way of writing to very concise, very point wise things, not so fly language, lot of arguments? ये एक नया तरीका ही हो गया तुम्हारा, या ये मतलब जनरली तुमने टॉपर्स की कॉपीज में भी सब में यही देखा था? सर, टॉपर की कॉपीज में भी ये चीज काफी एविडेंट हो चुकी है कि अब पॉइंट अच्छा। वाइज लिख के ज्यादा मार्क्स भी स्कोर होते हैं और इवन थिंकिंग भी डाइवर्स हो पाती है। क्योंकि जैसे मेरा पॉल साइंस ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल में तो अभी भी पैराग्राफ्स ही लिखना है, वो काफी वहां पे क्लैरिटी है, वो पैराग्राफ से फ्लो आता है और अच्छे से आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट हो पाती हैं। यहाँ पे भी नो डाउट पॉइंट्स लिखने हैं, बट हमारे पॉइंट्स भी एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए 1 और 2 लाइंस तक। बिकॉज हम्म समटाइम्स अगर हम बिल्कुल ही एक आधे लाइन का पॉइंट लिख के आगे बढ़ गए, तो इट विल नॉट मेक मच सेंस टू द हम्म एग्जामिनर। तो वो चीज हम्म भी थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। बट थोड़ा अपनी अगर थोड़ी थिंकिंग को ऐसे कंपार्टमेंटलाइज रखेंगे कि हमें हम्म पॉइंट वाइज बढ़ना है, तो उससे क्या होता है कि हम क्वेश्चंस को होलसम वे में एड्रेस कर पाते हैं, प्रोज भी बता पाते हैं, कॉन्स भी बता पाते हैं, हम्म चैलेंजेस भी बता पाते हैं, वे फॉरवर्ड भी बता पाते हैं। वरना हम क्या होता है, जनरली क्वेश्चन पढ़ के एक डायरेक्शन में सोचते हैं और आधा पेज 2 पेज वो लिख के बाद में याद आता है कि यार वो भी तो लिखना था। तो जनरली पहले क्या होता था, यूपीएससी के क्वेश्चंस को ब्रेक करना आसान होता था, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। अभी क्या हो रहा अच्छा। है, यूपीएससी के क्वेश्चंस 4-4, 5-5 लाइंस के आ रहे हैं। तो एक ओके। प्रेमाइस भी होता है, फिर उसके बाद उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा होता है, फिर आगे एक और चीज लिंक कर दी गई होती है। तो जब इतने ज्यादा क्वेश्चन 3-4 पार्ट हो जाते हैं, तो कभी कभी उसको तोड़ना भी आसान नहीं होता। तो अगर हम ऐसे थोड़ा एग्जाम्पल दोगे रैशनलाइज कोई? रखते हैं। एग्जाम्पल याद आता है कोई विच यू सर, अटेम्प्टेड? जैसे एग्जाम्पल मेरे को भी क्वेश्चन वाइज, जैसे एक आरपीए का क्वेश्चन आया था पेपर 2 में, पॉलिटी के हम्म पेपर में। तो उन्होंने पहले आरपीए क्या है वो पूछा, वो इवॉल्व कैसे हुआ वो पूछा, उसमें शायद इलेक्शन कमीशन का क्या रोल रहा है या पार्टीज का क्या रोल है वो पूछा, और एक और चीज पूछी। जैसे 5 पार्ट्स थे। तो कभी कभी हम्म हम ऐसे पार्ट्स पढ़ के थोड़ा इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि हमें किस हम्म चीज को ज्यादा फोकस करना है, किस चीज को कम एक्सप्लोर करना है आंसर में। तो वो चीज थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है। बट अगर हम हम्म थोड़ा रैशनली सोचें, हर
पार्ट के 1 या 2 पॉइंट्स ही हैं जो उसको असली में एड्रेस करते हैं, बाकी हम जस्ट जस्टिफाई करने के लिए और डायमेंशंस एक्सप्लोर करते रहते हैं। तो अगर हम टू द पॉइंट आंसर करेंगे, ऐसे चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी एड्रेस करना इजी हो जाता है। इवन केस Interesting. स्टडीज में ये चीज एप्लीकेबल है। केस स्टडीज Interesting. भी जब हम मॉक्स लगाते हैं, केस स्टडीज बहुत छोटी होती हैं एज कम्पेयर टू यूपीएससी। यूपीएससी की केस अच्छा स्टडीज बहुत बल्कि हो गई हैं पिछले 2-3 सालों से। तो अच्छा कभी कभी जब हम केस स्टडी को रीड कर रहे होते हैं तो हमारा इतना टाइम चला जाता है कि उसके बाद हम पैनिक करना स्टार्ट कर देते हैं कि यार अभी तो मैंने एक बार ही पढ़ी, मेरे को समझ भी नहीं आई, और अब मेरे को आंसर भी करना और दोबारा भी पढ़ने का टाइम नहीं है। इस बार केस स्टडीज में 5 क्वेश्चंस थे हर केस स्टडी में यूपीएससी में। तो डेफिनेटली वो चैलेंजिंग था। तो वहां पे भी अगर हमें अपना टाइम सेव करना है और अपनी आर्गुमेंट्स को बेस्ट पॉसिबल वे में बताना है, तो फ्लो चार्ट बनाना या मेरिट्स डीमेरिट्स का टेबल बना के शॉर्ट में अपने आर्गुमेंट्स देना, एक एक दो दो तीन तीन पॉइंट्स में, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। वरना पेपर कंप्लीट ही नहीं हो सकता, स्पेसिफिकली जीएस 4 वो बहुत बल्कि बना रहे हैं। Hmm. इवन थ्योरी have you पोर्शन भी। have you tried chat gpt by any chance अभी यस सर, तक? यस सर, यस सर। जैसे बोल रहे हो ना, वैसे ही लग रहा है कि बिल्कुल। तो चैट जीपीटी कैन कंसाइजली पुट द आर्गुमेंट्स ऑफ बोथ द साइड इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? सो एटलीस्ट जीएस पेपर जो तुम मुझे बता रहे हो, वो तो वैसे ही लग रहा है कि यार इफ यू कुड हैव अ प्रॉम्प्ट देयर, या अगर तुम खुद को वैसे ट्रेन कर लो कि ओ देयर इज अ क्वेश्चन एंड नाउ लेट मी डिकोड इन फ्रेमवर्क्स, दैट्स द बेस्ट अप्रोच टू मेंस, राइट? डेफिनेटली पुटिंग इट सर। इनटू वेरी इजीली डाइजेस्टेबल पॉइंट्स। नाइस यार स्वपन। क्या लग रहा है इस बार, हाउ वाज योर मेंस अटेम्प्ट इस बार का? मतलब सर मेंस किस पेपर अटेम्प्ट में में लग रहा है इम्प्रूव किया? स्पेसिफिकली सर ऐसे में लग रहा है कि इस बार एटलीस्ट जब मैं डिलीवर कर रहा था या लिख रहा था ऐसे को, तो कई जो पैरामीटर्स हैं जो जनरली लगता है अपने कंट्रोल में नहीं है, वो कंट्रोल में लगे। इसका अच्छा एक नाइस। इसका एक रीजन तो जिशान सर के साथ इंटरेक्शन डेफिनेटली थी। क्योंकि जनरली हमें ऐसे में बता दिया जाता है कि प्रैक्टिस करो, फिलोसफिकल ट्राई कर लो, वैसे ट्राई कर लो, हेल्थ एजुकेशन रिलेटेड, वुमेन रिलेटेड, ये थीम्स रेकरिंग है। बट हम्म। जैसे जीशान सर ने थोड़ा हैंड होल्ड करके बताया कि इस ऐसे को भी कैसे लिखना है, हर पैराग्राफ की एक अपनी इंटेग्रिटी होती है, उस इंटेग्रिटी को कैसे मेंटेन करना है, हर एक डायमेंशन को कैसे एक्सप्लोर करना है, काउंटर कैसे देना है। ये एक ऑर्गेनिक वे से पता लगा कि एटलीस्ट कंट्रोल कैसे कर सकते हैं ऐसे राइटिंग को। क्योंकि जनरली क्या होता है, वहां पे हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स दें, सोशल हम्म। पॉलिटिकल इकोनॉमिक पेस्टल अप्रोच लगाएं। बट वो ऑर्गेनिकली एक फ्लो बनाना मुश्किल हो जाता है। कई लोग बोल देते हैं यूज कीवर्ड्स यूज करो, या लिंकिंग आर्गुमेंट्स, लिंकिंग स्टेटमेंट्स यूज करो, बट उसको वहां पे अप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट अगर गॉट हम इट। कॉन्शियसली लिखें थोड़े एसेज बिफोर आवर मेंस, तो ये चीज थोड़ी हम अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। तो जनरली लगता है कि ऐसे में हमारे आउट ऑफ रीच जा रही है। तो ऐसे बट आई समथिंग डोंट इस नो। बार काफी फोकस किया। हाँ हाँ, आई मीन यस they're सर। just taking the best case scenario. Nice. So what we'll do, no, इस वीडियो में we'll keep layering your answer copies बीच बीच में whenever you talk about कि कैसे diagrams या कैसे, we'll check the answer copies that you've written and submitted to us, so that जो भी सुन रहा है ना उसको काफी ढंग से आइडिया मिले कि this is, and remarks क्या क्या मिले थे again from Sajal, Sukanya and Dishan on that. But amazing chat यार स्वपन. I hope you know whenever your date comes you crack the interview right, and देखते हैं कि कितने कितने मार्क्स आते हैं इस बार, and then we'll sit again back and see your copies and then देखेंगे you know क्या quantum leap लिए इस बार के term में. Thanks for taking the डेफिनेटली। time out. थैंक यू सर। Was pleasure talking with you. You know, pleasure having you go deep in your own exam psyche and give me the examples. That was really really useful, and I hope people will find this you know much much more useful when they see it. थैंक्स अ लॉट सर। So take care. Bye.